तो मेरी स्क्रीन दिखती है ना आपको? यस प्रभु जी। ठीक है। तो वर्स नंबर 7 हमने किया था लास्ट टाइम. आफ्टर विदुरा ate sumptuously and took sufficient rest, he was comfortably seated. Then king began to speak to him, and all who were present there listened. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किंग युधिष्ठिर ने क्या बोला उनको. ठीक है, तो उनको पहले बुलाया, खिलाया पिलाया. ठीक है, उनको रेस्ट करने के लिए आसन दिया. और फिर उनसे वो क्वेश्चंस पूछने लगे. क्या पूछने लगे हैं वो आज हम देखेंगे. युधिष्ठिरुवाच अपि स्मर्थानो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणनाद विष्यन् विश विषाग्नदे मोचिता यत् समाकृता. Maharaj Yudhishthir said, "My uncle, do you remember how you always protected us, along with our mother, from all sort of calamities? Your partiality, like the wings of a bird, saved us from poisoning and arson." Purport by His Language, the Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read प्रभु जी। Due to Pandu's death at an early age, his minor children and widow were the object of special care by all the elderly members of the family, especially Bhishma Dev and Mahatma Vidur. Vidur was more or less partial to the Pandavas due to their political position, although Dhritarashtra was equally careful for the minor children of Maharaja Pandu. He was one of the intriguing parties who wanted to wash away the descendants of Pandu and replace them by raising his own sons to become the rulers of the kingdom. Mahatma Vidur could follow this intrigue of Dhritarashtra and company, and therefore, even though he was a faithful servitor of his eldest brother, Dhritarashtra, he did not like his political ambition for the sake of his own sons. He was therefore very careful about the protection of the Pandavas and their widow mother. Thus, he was, so to speak, partial to the Pandavas, preferring them to the sons of Dhritarashtra, although both of them were equally affectionate in his ordinary eyes. He was he was equally affectionate to both the camps of nephews in the sense that he always chastised Duryodhan for his intriguing policy against his cousins. He always criticized his elder brother for his policy of encouragement to his sons, and at the same time, he was always alert in giving special protection to the Pandavas. All these different activities of Vidur within the palace politics made him well known as partial to the Pandavas. Maharaja Yudhishthir has referred to the past history of Vidur before his going away from home for a prolonged pilgrim journey. Maharaja Yudhishthir reminded him that he was equally kind and partial to his grown up nephews, even after the Battle of Kurukshetra, a great family disaster. Before the Battle of Kurukshetra, Dhritarashtra's policy was peaceful annihilation of his nephews, and therefore he ordered Purochana to build a house of lac at Varanavata. And when the building was finished, Dhritarashtra desired that his brother's family live here for some time. When the Pandavas were going there in the presence of all the members of the royal family, Vidura tactfully gave instructions to the Pandavas about the future plan of Dhritarashtra. This is specifically described in the Mahabharata, Adi Parv 144. He indirectly hinted even a weapon not made of steel or any other material element can be more than sharp enough to kill an enemy, and he who knows this is never killed. This is to say, he hinted that the party of the Pandavas was being sent to Varanavata to be killed, and thus he warned Yudhishthira to be very careful in his new residential palace. He also gave indications of fire and said that the fire cannot extinguish the soul, but can annihilate the material body. But one who protects the soul can live. Kunti, sorry, Kunti could not follow such indirect conversations between Maharaj Yudhishthir and Vidura, and thus, when she inquired from uh, her son about the purport of the conversation, Yudhishthir replied that from the talks of Vidura, it was understood that there was a hint of fire in the house where they were proceeding. Later on, Vidura came in disguise to the Pandavas and informed them that the housekeeper was going to set fire to the house on the 14th night of the waning moon. It was an intrigue of Dhritarashtra and the Pandavas might die altogether with their mother,
And by his warning, the Pandavas escaped through a tunnel underneath the earth, so that their escape was also unknown to Dhritarashtra. So much so that after setting the fire, the Kauravas were so certain at the death of Pandavas that Dhritarashtra performed the last rites of death with great cheerfulness. And during the mourning period, all the members of the palace became overwhelmed with lamentation, but Vidura did not become so because of his knowledge that the Pandavas were alive somewhere. There are many such instances of calamities, and each of them Vidura gave protection to the Pandavas on one hand, and on the other hand, he tried to restrain his brother Dhritarashtra from such intriguing policies. Therefore, he was always partial to the Pandavas, but just as a bird protects its eggs by its wing. In English. Right. Thank you. That's a long That's a beautiful one. Yeah. and beautiful. Yeah. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम Om नमो भगवते Namo वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते Bhagavate वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम Om नमो Namo भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ऑलराइट, सो अभी वो क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के माई अंकल, हाँ चाचा है ना उनके, तो बोल रहे हैं चाचा, डू यू रिमेम्बर हाउ यू ऑलवेज प्रोटेक्टेड अस अलोंग विद अवर मदर फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ कैलेमिटीज। हाँ, बेसिकली वो उनको बोल रहे हैं कि हम आप पर ही आश्रित थे, ठीक है ना। स्पेशल केयर due to Pandu's death at an early age, his minor children and widow were the object of special care by all the elderly family members, especially Bhishma Dev and Mahatma Vidura। ठीक है, वो उन्हीं पर ही आश्रित थे और वो उनको छोड़कर चले गए। कैन यू इमेजिन कि आप जिस पे आप डिपेंडेंट हो वो आपको छोड़कर चला जाए, कैसा लगेगा। और ओनली ही इज ओनली उसी पे और भीष्म देव पे थोड़ा बहुत, ठीक है, बट महात्मा विदुर पे बहुत ज्यादा, ठीक है, और वही आपको छोड़कर चला जाए तो आपको कैसा लगेगा। दिस इज व्हाट विदुर इज ट्राइंग टू, दिस इज हमारे आचार्य जो कमेंट्री करते हैं कि वो कहने के याद है तुझे, तू हमें कैसे बचाता था। हाँ, और हमारी मदर को सारी जो भी हम पे अटैक होता था, ये पॉइजनिंग का, आर्सन का, ये सारे, तो हमें कैसे बचाता था, जैसे विंग्स, लाइक द विंग्स ऑफ द बर्ड। जैसे बर्ड्स अपने बच्चे को बचाते हैं विंग से बारिश में, ठीक है। तो और तू हमें छोड़कर चला गया। तो जो हम जिस पे आश्रित हैं, ठीक है, मान लो हम किस पे आश्रित होते हैं, जनरली हम अपने स्पाउस पे होते हैं, ठीक है। तो कभी लड़ाई हो जाए तो बोल दो मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये घर, और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड बोल दे कि अरे मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा, एकदम से आप पिघल जाओगे, है कि नहीं। क्योंकि आपका हस्बैंड बोल दे आपको, आपकी वाइफ बोल दे तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इमीडिएटली आप अपना सारा जो वैराग्य है, जो घर छोड़ने की बात है, वो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विदुरा विदुरा वाज डूइंग, युधिष्ठिर महाराज वाज सेइंग टू विदुरा कि हम आपके स्पेशल केयर में थे, ठीक है। वो याद करवा रहा है कि हमें आपने हमें कैसे कैसे बचाया। हम्म, दुर्योधन, हमें पता है ये कितने सारे अटैक्स हुए उनके। दुर्योधन उनको मारना चाहता था, और धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र क्या कर रहा था, वेरी क्लेवरली, वो सीधा सीधा नहीं मार रहा था, वो इनडायरेक्टली, जैसे पॉलिटिशियंस, दे वर वेरी श्रूड पॉलिटिशियंस, ठीक है। क्योंकि अगर सीधा सीधा मार दिया फिर तो भीष्म पितामह को भी पता चल जाएगा और सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि केस ने तो अपने पुत्रों को राज्य देना था इसलिए मारा। इसीलिए वो ऐसी ऐसी नेफेरियस प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते थे जिससे वो मार। वन ऑफ दैट जो विप्रोपाल एक्सप्लेन करें वाज दैट लक्षाग्रह, हम सबको पता है ना कि लक्षाग्रह है। लक्षाग्रह का जब उन्होंने बनाया
तो उन्होंने उनको क्या बोला कि हमारे यहाँ महल में ना टाइट हो रहा है बहुत, ठीक है, हम 100 हैं, 5 आप लोग हो गए हो, तो ऐसा करो आप 5 लोगों के लिए ना हमने एक वहां पर महल बनाया है, वारणावत में, वारणावत में, तो आप वहां चले जाओ। हाँ, अब उनको क्या पांडवों पांडव क्या हमारी तरह बुद्धिहीन थे? नहीं, उनको सब पता था वो क्या, व्हाट दे आर अप टू। स्टिल दे वेंट, दे सेड ओके, वी हैव फेथ ऑन कृष्णा, कि कृष्णा कुछ हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। उनको भी पता था कि अगर 100 के लिए जगह और 5 के लिए जगह नहीं है, बट समहाउ दे न्यू दैट ओके। तो वो चले गए वहां पर। और फिर, अब क्योंकि अब विदुर, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने बताया कि विदुर उनको इशारों इशारों में, कोड वाली लैंग्वेज, इनक्रिप्टेड लैंग्वेज, जैसे आईटी में होती है ना, इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में उनसे वो उनको वो बता देते। हम्म, क्यों? क्योंकि उसके दुर्योधन के जो गुप्तचर थे, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, और उनको विदुर पे तो शक था ही कि वो उनका चहेता है। तो विदुर पे खासकर नजर रखी हुई थी उन्होंने कि वो कुछ बोले तो सही, तो उसको पकड़ ले। तो विदुर विदुर फिर कैसे बोलता था, क्या बोलता था? विदुर tactfully gave instructions to पांडवान। कैसे दे रहा है वो इंस्ट्रक्शन? Even a weapon not made of steel or any other material element can be more sharp, can be uh, can be more than sharp enough to kill an enemy, and he who knows this is never killed। ठीक है, इससे उसने हिंट दिया उसको कि आपको वर्णावत में जो भेज रहे हैं वो आपको मारने की प्लॉटिंग चल रही है। ऐसी ऐसी उसको इंस्ट्रक्शंस में उनको उसने समझाया पांडवों को। फिर उसने क्या बोला? he also gave indications of fire and said fire cannot extinguish the soul but can annihilate the material body, but one who protects the soul can live। ठीक है, तो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हो कि सोल को जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। और फायर की इंडिकेशन दे रहे हैं हम कि आपको मारने का प्लान है, और कैसे मारने का प्लान है? आग के साथ, आग में जला देने का। लेकिन ऐसी ऐसी इंडिकेशंस दी। ऑन टॉप ऑफ इट, फिर वो क्या है, भेष बदल कर आए, डिसगाइज, केम इन डिसगाइज। वो भेष बदल कर ठीक है, उनको भेज दिया उन्होंने, लाक्षागृह में भेज दिया। अब उन्होंने ऐसा नहीं कि पहले पहले दिन ही गए और तभी आग लगा दी उनको, नो, दे वेटेड कि चलो 1-2 दिन रुकते हैं, उसके बाद हम उनको, ताकि शक ना हो ना किसी को कि बस हमने उनको इसीलिए भेजा था। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि हाँ, हम 10-15 दिन के बाद इनको फिर से फिर आग लगाएंगे। तो उन्होंने वो डेट सेट की। और विदुर के भी जो गुप्तचर थे, उनको भी ये पता चल गया कि कब हो रहा है ये। तो सोच रहे हो, देख रहे हो, विद इन द हाउस, विद इन द पैलेस, सो मच पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। तो उसने पता लगवाया कि 14th नाइट नाइट ऑफ द वेनिंग मून, इस दिन पे हम आग लगाएंगे। अब सोचो, जो पांडव वहां पर गए हैं उनको वहां पे घी भी लगाया हुआ था, तेल लगाया हुआ था, और लाख की स्मेल आती है, तो उनको क्या स्मेल नहीं आई होगी? उनको आ गई। और उन्होंने क्या किया, विदुर के साथ मिलके विदुर ने टनल बनवा दी, अंदर ही अंदर। कैन यू इमेजिन? टनल। जैसे सोचो, महल बना, और महल के साथ जो महल बन रहा था, तो विदुर को पता था कि इसका क्या प्लान है, तो उन्होंने विदुर ने टनल भी बनवा दी। इट्स नॉट इजी। सोचो, सुरंग यहाँ पे हमारी, ये जो यहाँ पे टनल बन रही है, कितने 10 साल हो गए हैं ये बनते हुए। जब से मैं ऑस्ट्रेलिया हूं, तब से वो बोल रहे हैं हाँ टनल बन रही है, अभी तक नहीं बनी। तो उन्होंने रातों रात, वो कैसे, नॉट रातों रात, बट दे आल्सो टुक सम डेज, बट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। ठीक है, तो जो लेबर लगी है वहां पर, हाउ हाउ इट ऑल अरेंज, सो दिस ऑल वाज अरेंज्ड बाय विदुर टू प्रोटेक्ट पांडवास। एंड युधिष्ठिर महाराज वो भूले नहीं उस चीज को। कोई जो हमारे लिए कुछ करता है, ठीक है, वी शुड नेवर फॉरगेट, वी शुड नेवर फॉरगेट। तो हमारी क्या है, फॉरगेटफुलनेस हमारी नेचर में। ओवर द टाइम वी फॉरगेट, किसी ने कुछ भी किया होता है, बट दिस इज द ट्रू वैष्णव हु नेवर फॉरगेट्स, जो किसी ने किसी के लिए किया हो। खासकर इतनी, ये तो इट्स टू मच, टू मच, है ना? तो सुरंग में, और सुरंग भी कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं,
सोचो उसमें से किसने निकलना था, भीम ने। ये 5 फुट 5.5 फुट के लोगों ने नहीं निकलना था, बड़े बड़े 8-8 10-10 फुट के लोगों ने निकलना था उसमें से। ठीक है, कभी सुरंग में गए हो तो पता चलता है। अब वैष्णो देवी है ना सुरंग, तो मैं तो नहीं गया हूँ खैर, बट मुझे तो बहुत वो लगता है, क्लास्ट्रोफोबिक लगता है व्हेन आई एंटर इनटू अ लाइक केव, सुरंग सुरंग जैसा कुछ मैंने तब हुजूर। तो यू कैन इमेजिन ये हाउ डिफिकल्ट इट वाज। ठीक है। So so this all was done by Vidur Maharaj. So this is all Prabhupada is explaining here. और प्रभु जी, ये भी ये था हम्म। ना कि छुपके से बनाना था, ऐसा ही नहीं मतलब हाँ। किसी को पता भी नहीं चले। और पैसे भी डालने थे, किसी को हाँ। पता भी नहीं चलना चाहिए, और छोटी हाँ। सुरंग भी नहीं थी। हाँ, छोटी बहुत लंबी सुरंग थी, राइट। वो छोटी सुरंग नहीं थी, बहुत लंबी, बहुत दूर जाके निकलती थी वो, और किसी को हम्म, पता भी नहीं चलेगा। एट द सेम हाँ। टाइम बिग, लॉन्ग एंड ह्यूज, और कम टाइम में एंड विदाउट एनीवन नोटिसिंग। हम्म, तो तभी जब वो, फिर उन्होंने क्या कहा पांडवों ने, उन्होंने कहा कि चलो हम उतनी 14th नाइट ऑफ वेनिंग मून की क्यों वेट करनी है। उन्होंने खुद ही आग लगा दी। और जिस दिन उन्होंने आग लगाई उसी दिन ही एक वहां पे मेड सर्वेंट थी, वो सो रही थी अपने 5 बच्चों के साथ। तो वो मर गए, जल गए। और तो सबको लगा कि कुंती और उसके 5 पुत्र मर गए। ठीक है। तो जबकि और सब रोने लगे, ठीक है, कि मर गई, और वो सब वॉट एवर लास्ट राइट, सबने उनका अंतिम क्रियाक्रम भी कर दिए। बट विदुर को पता था कि नहीं हुआ है, सो ही प्रोटेक्टेड देम बेसिकली। So there is nothing much to discuss if they have, या किसी के पास और कोई पॉइंट्स हैं तो we can discuss. Anyone wants to add anything? Prabhu, I have a question. I read it somewhere हम्म। that Vidura's after death, Vidura और युधिष्ठिर की बॉडी मर्ज कर जाती है। I read it somewhere, I remember. हाँ, तो यू नो व्हाई। इसका क्या मतलब, क्या कुछ डीप मीनिंग है, समथिंग, हाँ, उसका बिकॉज रीजन बिहाइंड इट? वो था यमराज। हाँ, यमराज, वो तो पता है मुझे। हाँ। वो धर्मराज थे और विदुर भी यमराज थे। तो बोथ वर सेम। अच्छा। तत्व तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों यमराज ही थे। तो अच्छा। ये बहुत ही यूनिक केस है कि किसी की एक्सपेंशन सेम टाइम पे आई हो। एक और केस है हमारे उसमें, भागवत उसमें आता है हमारे शास्त्रों में। एक तो ये केस है कि यमराज वहां पर हैं और उनके दोनों दो एक्सपेंशन उनकी, युधिष्ठिर और विदुर, एट द सेम टाइम दे आर प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन। हम्म। दिस इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। सेम एक और चीज हुई थी जब ये राम भगवान ने धनुष तोड़ा था शिव जी का, और शिव जी के भक्त हम्म। थे कौन, परशुराम। तो परशुराम। परशुराम और राम बोथ हाँ। वर इन द सेम सीन। हम्म। ठीक है। तो सेम ही है, हम्म। जो कृष्णा के ही अवतार है, विष्णु के अवतार है, तो वो सेम सेम स्पॉट पे एट द सेम टाइम। So this was a very rare scenario, and that's how they merged when they finished their task. क्योंकि ओके। यमराज कौन है, 12 महाजन, 12 महाजनों में से एक महाजन है यमराज। हम्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, 10वें स्कंद में आता है कि धर्म को किसने बनाया। भगवान कहते हैं मैंने खुद बनाया। फिर उससे नेक्स्ट वर्स में क्या बोलते हैं, प्रहलादो भीष्मो जनको। वो 12 महाजनों के नाम लेते हैं, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, युधिष्ठिर ये प्रहलादो भीष्मो जनको, ब्रह्मा, शिव जी, यमराज, ये सब 12 महाजन हैं जिन्होंने, जिनको आगे भगवान ने दिया कि इस धर्म को आगे प्रोपिगेट करो, सनातन धर्म। हम्म। सो उसमें यमराज स्वयं इज वन ऑफ द महाजन। सो यमराज इज नॉट अ नॉर्मल, हमें लगता है ना कि बस वो एक हाँ। normal person, is not a normal personality. So he expanded himself into Vidur and Yudhishthira at the same time. That's how when they went back, they ओके। merged. ओके। इंटरेस्टिंग, थैंक यू। All right. आगे चलते हैं बस। Text 9. कया वृत्त्या वर्तितं वस चरा चर चरद्धभीक्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले।
When traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? बड़ा वैलिड क्वेश्चन। क्या अब आप पिलग्रिमेज से आए हो 36 साल के बाद, तो आपने 36 साल अपना खाना पीना कैसे किया? हाउ डू यू मेंटेन योर लाइवलीहुड? और कहाँ कहाँ पर आप गए, कौन कौन से तीर्थ स्थानों पर गए? ठीक है, हम भी जब इंडिया से आते हैं तो हमें पूछते हैं ना लोग, अच्छा कहाँ कहाँ घूम के आए हो, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा पे गए हो, कहाँ कौन कौन से जगह पे धाम यात्रा करी है, कहाँ पर रुके थे, क्या किया? सेम क्वेश्चन ही इज आस्किंग। पर wants to be? Yes, Prabhu, I can read. Vidura went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigues, as referred to herein before. He was practically insulted by Duryodhana, calling him a son of Sudrani, although it was not out of place to talk loosely in the case of one's grandmother. Vidura's mother, although a Sudrani, was the grandmother of Duryodhana, and funny talks are sometimes allowed between grandmother and grandchildren. But because the remark was an actual fact, it was unpalatable talk to Vidura, and it was accepted as a direct insult. He therefore decided to quit his parental house and prepared for the renounced order of life. This preparatory stage is called Vanprasthashram Ashram, or retired life, for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. In the holy places of India like Vrindavan, Haridwar, Jagannath Puri, and Prayag, there are many great devotees, and uh, there are still free kitchen houses for person who desire to advance spirituality. Maharaj Yudhishthir was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses, Chhatras. Interesting है। तो अब विदुर से क्या पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि कैसे रहे आप, हाँ वहां पर, और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या सर्विसेज करे? तो इसमें प्रभुपाद क्या बड़ा अच्छा से प्रभुपाद स्टार्ट कर रहे हैं कि विदुर पहले गया क्यों था, राइट? पिलग्रिमेज पे क्यों गया था? क्योंकि युद्ध होने से पहले ही चले गए थे, क्योंकि दुर्योधन हैज इंसल्टेड हिम एंड ही कॉल्ड हिम एज अ सन ऑफ शूद्रन, दासी पुत्र। वो बोला दासी पुत्र, और क्यों बोला वो? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने बोला था युद्ध के, सॉरी, विदुर विदुर ने बोला था धृतराष्ट्र को कि युद्ध मत करो, सिर्फ एक ही रीजन है तुम्हारा, ये जो पाप पर्सोनिफाइड, सिन पर्सोनिफाइड जो तुम्हारा लड़का है ना, ये दुर्योधन, इसको निकाल दो। अगर ये निकल गया, बाकी 99 में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम की जड़ है, इसको निकाल दो तो ये युद्ध टल जाएगा। डोंट डू दैट, डोंट, मत करो युद्ध, ठीक है? अब दुर्योधन ने जब ये सुना, उसको इतना गुस्सा आया, वो बोला, कहता दासी पुत्र, कहता तू यहाँ से, अपने चाचा को बोल रहा है, अपने अंकल को बोल रहा है, यानी मैंने, कि तू यहाँ से निकल जा, मैं सिर्फ तेरी सांसें छोड़ रहा हूँ, अपना धनुष भी यहाँ रख के जा, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी सांसें छोड़ रहा हूँ तेरी। तो वो विदुर को पहले तो उनको दुख लगा कि ओह, कैसे मेरी इंसल्ट हुई पब्लिकली, ऐसे मेरी इंसल्ट हुई, और इंसल्ट, सबसे ज्यादा इंसल्ट क्या हुई कि मेरा धनुष भी रख जाए। एक क्षत्रिय के लिए धनुष उसका आभूषण होता है, तो वो भी उसने बोला कि लाइक उसके कपड़े उतार दिए, समझ लो। तो उसने ऐसे धनुष भी रखकर ऐसे ही चला गया। एक बार तो उसके मन में आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, बट इन द सेकेंड मोमेंट ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा है, मैं इस सारी पॉलिटिक्स से, इस सब से, इस सब मटीरियल वर्ल्ड से निकल के, मैं, मुझे चांस मिला है पिलग्रिमेज पे जाने का, वानप्रस्थ आश्रम को एक्सेप्ट करने का। दिस preparatory stage is called वानप्रस्थ आश्रम, और retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. We should be asking ourselves कि हम till when we are going to do this, कब तक ये करेंगे? We have almost, हम सब लोग 40s में हैं, start early 40s, या 40 लगने वाला हो, तो हमारे पास कितना टाइम है? और
कब हम रिटायर होने की प्लानिंग करेंगे, व्हेन, या हम वेट करेंगे कि हमारे घर में भी कोई दुर्योधन जैसा आए और हमें लात मारे। आर वी वेटिंग फॉर दैट, कि क्या हम शास्त्र पढ़ के हमें इतनी सेंस आ जाए कि हम भी ये जो जो सब हमने कर रहे हैं, जितना भी ये जो रहता फैला रखा है जो हमने, उसको अनवाइंड करें कि उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करें। दैट इज अप टू अस। वी शुड आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हेन आई एम गोइंग टू रिटायर। मैं कब वृंदावन जाना शुरू करूंगा, मैं कब धाम यात्रा करूंगा। वन, वानप्रस्थ मीन्स गो टू वन, 51। आइडियली बोलते हैं 51, 50, 51। 50 के बाद इट इज वानप्रस्थ, तो वन में जाना चाहिए। एंड वानप्रस्थ इज नॉट वेरी हार्ड एक्चुअली, बिकॉज वानप्रस्थ में क्या है, यू कैन गो विद योर वाइफ। संन्यास होता है जिसमें आपको अपनी वाइफ को भी छोड़ना है, बट वानप्रस्थ इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। कुछ नहीं करना है आपको, अपने अपने अपनी वाइफ के साथ आप जा सकते हो अगर आपकी सेहत ठीक है, ठीक है ना? और दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अगर आप, इफ यू आर वेल, देन यू शुड गो, यू शुड गो, यू शुड नॉट वेट कि हाँ मैं बच्चों को, अपने अपने बच्चों के बच्चों को, पोतों को, अपने दोतों को, मैं उनको ही, पहले पहले खुद के बच्चों को पालो, फिर अपने बच्चे के बच्चों को पालो। यही करते रहोगे, अपने लिए कब निकलेगा टाइम आपके लिए। मम्मी को मैं बोलता होता था जब मम्मी थे यहाँ पर, तो कि मम्मी बोलते थे चल इस ये कर दूँ, मैं बच्चे का ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। मैंने कहा मम्मी नहीं, आपको नहीं करना है, आप वानप्रस्थ में हो। आप सिर्फ माला करो, लेक्चर सुनो। लाल गोविंद उनको पसंद था, लाल गोविंद प्रभु, उनके लेक्चर सुनते थे। भागवत पढ़ो। आपको क्यों करना है ये सब बाकी काम, यही करते आए हो ना सारी जिंदगी। अगर अब भी यही करना है तो फिर क्या फायदा, फिर तो कभी निकल ही नहीं पाओगे इस चक्कर से, ठीक है नहीं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें थोड़ी आदत पड़े धाम जाने की। मेरे यहाँ पर टेम्पल में एवरी ईयर देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज हु गो, और कुछ तो दो दो बार जा रहे हैं वृंदावन। अभी ओजस्वी प्रभु जुलाई में गए थे, अभी वो दिसंबर में फिर जा रहे हैं, ठीक है। अभी नंदूलाल प्रभु जुलाई में गए थे, अभी फिर जा रहे हैं। बहुत सारे डिवोटीज हैं जो इंडिया वृंदावन साल में दो दो बार जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि हम सारी जिंदगी मेलबर्न काटने के बाद वन फाइन डे हम कहेंगे कि चलो ठीक है अब मैं रिटायर हो जाता हूँ 60 पे, ठीक है, तो मैं वृंदावन जाके सेटल हो जाऊंगा। नॉट पॉसिबल, सॉरी। बिकॉज जब आप गए ही नहीं हो, एकदम से आप कैसे डिसीजन ले लोगे जाने का। यू शुड गो, साल में एटलीस्ट एक बार दो बार जाके वहां रहो। और ऐसा नहीं है कि आप जाके वहां पर महीना महीना रह लो, वो पॉसिबल ही नहीं है। बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि 4 दिन से ज्यादा धाम में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज उसके बाद आप अपराध करने शुरू कर दोगे वहां पर। अब वृंदावन जाओगे, वहां जाके आपको दिखेगा अरे यहाँ तो गंदगी है, यहाँ तो स्मेल आ रही है, यहाँ पे तो पानी खड़ा है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो वो है। ये क्या है, यू आर कमिटिंग ऑफेंसेस। जैसे धाम में जाके कोई पुण्य करते हैं ना, तो उसका 1000 गुना फायदा होता है। ऐसे ही धाम में जाकर अगर कोई हम अपराध करते हैं, उसका 1000 गुना नुकसान भी होता है। तो इसलिए हमेशा जब धाम जाओ, अपने किसी सीनियर डिवोटी के साथ जाओ, भक्तों के साथ जाओ, ताकि वो हमें साथ साथ गाइड करते रहें कहाँ जाना है क्या करना है। और मेरे गॉड ब्रदर हैं, वो वृंदावन, वो ऑडिट ऑफिसर थे चंडीगढ़ में। तो उन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन किया 50 साल की उम्र में, और धीरे धीरे पहले 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, ऐसे ऐसे उन्होंने वहां पर रहना शुरू कर दिया। और वहां पर उन्होंने फ्लैट ले लिया, और वो वहां पर 3 3 4 4 महीने रहते हैं वहां पर, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू मेंटेन योर लाइवलीहुड, वहां जाके कैसे रहोगे। अब मैं रहा था वहां पर, अब मार्च में जब मैं गया था 1 हफ्ता रहा था। अब 1 हफ्ता रहा, 2500 रुपये पर नाइट दिए मैंने, ठीक है। अब मुझे वहां पर 3 4 महीने अगर मैं सोचूं रहने की, तो 2500 पर नाइट के हिसाब से तो मैं रह लिया, फिर वहां पर रह ही नहीं होगा, ठीक है। फिर गोपाल्स पे लंच करना है,
गोविंदास गोपाल में जाके, तो वो वहां पर 400-500 रुपए वहां लग जाने। तो वही वो पूछ रहे हैं कि तुमने कहाँ खाया, कहाँ, क्या तुमने लंगर लंगर खाया। तो मेरे जो गुरु भाई हैं वो जो रह रहे हैं वहां पर, एक तो उन्होंने वहां पर फ्लैट लिया हो, तो वहां से आते हैं वो। और उसके बाद आके वहां पे जो इस्कॉन में ही लंगर है, पूरा लंगर हाउस है, तो वहां पर उन्होंने लंगर खाया। अब आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैं तो वहां पर ऐसे 3-4 दिन के लिए था। मैंने कहा अरे खिचड़ी, अब मैं इंडिया आया हूँ भी, यहाँ पर आके भी मैं खिचड़ी खाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं गोविंदा जाता हूँ। बट दिस इज व्हाट, हमारे, हम अगर जाएंगे भी तो वी कैन नॉट एडजस्ट देयर। क्यों? क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हमें आदत नहीं है। तो धाम जाने की आदत होनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम की इज द प्रेपरेटरी स्टेज। कब तक हम घर में पड़े पड़े रहेंगे? विदुर ने यही कहा धृतराष्ट्र को कि कब तक, उसने बोला कि कब तक तू, कहता तेरे को शर्म भी आ रही है, तू कुत्ते की तरह पड़ा है इस महल में, और तू वो तेरे को बोटियां फेंक रहे हैं वही लोग, वही भीम के टुकड़ों पे पल रहा है तू, जिसने तेरे 100 पुत्रों का वध किया था। कहता, "तो कुछ शर्म है तुझे? कहता निकल यहाँ से।" फिर फाइनली वो उसको भी जो अपने भाई को, धृतराष्ट्र को भी वहां से लेकर गए। सो वी नीड आइदर, या तो हम शास्त्र पढ़ के अपनी लाइफ अच्छे से गृहस्थ आश्रम में रहते रहते ऐसे प्रिपेयर करें कि हमारे पास एग्जिट प्लान होना चाहिए गृहस्थ आश्रम से निकलने का। अगर गृहस्थ आश्रम में से निकलने का एग्जिट प्लान नहीं है, ट्रस्ट मी, वानप्रस्थ भी यहीं, संन्यास भी यहीं, यहीं पर ही दम तोड़ देंगे। अपने बच्चों की सेवा करते करते, अपने घर की, उस घर में ही सब कुछ अपना वो करते करते। वी नीड टू रिलिंक्विश, वी नीड टू रिलिंक्विश, जितना भी कंट्रोल है ना हमारा, हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे ही हम 50 के हैं, मेरे पापा, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने कहा, कहते बेटा ये ले, मेरे और मेरी वाइफ के ये 10,000 रुपए रख। हम वैसे इतना खाते नहीं है 10,000 जितना, कहते पर तू रख ले फिर भी, ठीक है, और आज से सारा घर तू चलाएगा। ठीक है ना, कि घर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आई एम नॉट बॉदर्ड, बिल भरा है नहीं भरा। सो आफ्टर सम टाइम वी नीड टू टेक अ कॉल कि मुझे किन किन चीजों से हटना है। अगर मैं उन चीजों में घुसा रहूंगा, अगर मैं किचन में घुसा रहूंगा, अगर मैं छोटी छोटी चीजों में घुसा रहूंगा, तो मैं भगवान में ध्यान कब लगाऊंगा? हाउ विल आई एडवांस स्पिरिचुअली? ठीक है। तो और उसकी प्रैक्टिस ये नहीं है कि 50 साल 60 जब रिटायर होंगे तब करेंगे, उसकी प्रैक्टिस हमें गृहस्थ आश्रम में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। धीरे धीरे हमें अपना कंट्रोल रिलिंक्विश कर देना चाहिए। और हमें साथ के साथ इधर से भी डिटैचमेंट, एंड साथ के साथ हमें बार बार धाम यात्रा भी करनी चाहिए, ताकि वहां हमारी अटैचमेंट हो सके। दोनों चीजें गो हैंड इन हैंड। यहाँ से डिटैचमेंट, मटेरियल लाइफ से डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल लाइफ से अटैचमेंट, मटेरियल से डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल से अटैचमेंट। नहीं तो वहां पर जाके हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे अरे नहीं, ये आई एम नॉट, आई डोंट बिलोंग हियर, वेयर एज वी शुड बिलोंग देयर। वृंदावन, मेरे को तो, मैं जब गया हूँ, मुझे तो 2-3 बार गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल नहीं किया वापस आने। बट हाँ, वो मैंने, चलो अब आगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ष में कवर होगा वो। कि वो उन्होंने अभी तो क्वेश्चन पूछा ना कि तुमने कहाँ लंगर खाया, कहाँ रहे, क्या किया। नेक्स्ट में चलते हैं। कोई, हाँ, कोई एनी पॉइंट्स, एनी क्वेश्चंस सो फार? ठीक है, चलो लास्ट करते हैं, 20 मिनट है। आई थिंक ट्राई टू कवर इट। भवद्विदा भागवता तीर्थभूतान् स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वतन् स्वान्तस्थेन गद्भृता। My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into the places of pilgrimage. Purport. Anyone wants to read? I can read I can from. read it, Ji. हाँ हाँ, माता जी आप पढ़ो। Yeah.
The personality of Godhead is omnipresent by his diverse potencies everywhere, just as the power of electricity is distributed everywhere within space. Similarly, the Lord's omnipresence is perceived and manifested by his unalloyed devotees like Vidura, just as electricity is manifested in an electric bulb. A pure devotee like Vidura always feels the presence of Lord everywhere. He sees everything in the potency of the Lord and the Lord in everything. The holy places all over the earth are meant for purifying the polluted consciousness of the human being by an atmosphere surcharged with the presence of the Lord's unalloyed devotees. If anyone visits a holy place, he must search out the pure devotee residing in such holy places, take lessons from them, try to apply such instructions in practical life, and thus gradually prepare oneself for the ultimate salvation, going back to Godhead. To go to some holy place of pilgrimage does not mean only to take a bath in the Ganges or Yamuna or to visit the temples situated in those places. One should also find representatives of Vidura who have no desire in life save and except to serve the personality of Godhead. The personality of Godhead is always with such pure devotees because of their unalloyed service, which is without any tinge of fruitive action or utopian speculation. They are in the actual service of the Lord, specifically by the process of hearing and chanting. The pure devotees hear from the authorities and chant, sing, and write of the glories of the Lord. Mahamuni Vyasadeva heard from Narad and then he chanted in writing. Sukadev Goswami studied from his father and he described it to Parikshit. That is why, that is the way of Srimad Bhagavatam. So, by their actions, the pure devotees of the Lord can render any place into a place of pilgrimage, and the holy places are worth the name only on their account. Such pure devotees are able to rectify the polluted atmosphere of any place, and what to speak of a holy place rendered unholy by the questionable actions of interested persons who try to adopt a professional life at the cost of the reputation of a holy place. Hare Krishna. Now, कितना अच्छा बोल रहे हैं वो। युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं? कहते आप जैसे जो डिवोटीज हैं वो धाम में प्यूरिफाई होने नहीं जाते, वो धाम को प्यूरिफाई करने के लिए जाते हैं। ठीक है, धाम उनकी प्रेजेंस से प्यूरिफाई हो जाता है। इतनी पोटेंसी होती है। महाभागवत इज कॉल्ड महाभागवत, विदुर महाराज। सो क्यों क्यों कर देते हैं वो? बिकॉज दे कैरी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विद इन योर हार्ट। उनके हृदय में भगवान होते हैं, जिससे कि वो सभी जगह को तीर्थ स्थान बना बना देते हैं। तो भगवान हम सबके हृदय में है, लेकिन उस डिवोटी ने वो रियलाइज कर लिया होता है कि भगवान है तो हम बोलते तो सभी है ना कि सबके हृदय में है भगवान। ठीक है, लेकिन लेकिन हमने रियलाइज नहीं किया है। हम मानते हैं और नहीं भी मानते। मानते मतलब ऐसे लिप लिप सर्विस है, बट वी एक्चुअली डोंट फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एवरीडे। वी हमें ये होना चाहिए कि हमें फील होना चाहिए कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो कृष्णा ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, नो वन एल्स। एंड लास्ट कुछ 4-5 हफ्तों से आई एम फीलिंग दैट वेरी इंटेंसली। बिकॉज क्या होता है, तुम्हारी दो लाइफ चल रही है, एक स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है, एक मटेरियल लाइफ चल रही है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मेनी टाइम्स कि जब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे कहीं से गालियां पड़ रही होती हैं या कुछ कुछ हो रहा होता है, तो एट द सेम टाइम मेरे को मटेरियल लाइफ से भी गालियां पड़ रही होती हैं। right? तो जब मुझे स्पिरिचुअल लाइफ से कुछ मेरा ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि कृष्णा जो है वो मेरा कर्मा काट रहे हैं, और वो ताकि मुझे मटेरियल से कम मिले वो मुझे स्पिरिचुअली दे रहे हैं। एंड नॉट वंस और ट्वाइस, आई हैव एक्सपीरियंस इट मेनी टाइम्स। और फिर क्या होता है, पहले वो स्पिरिचुअली आता है, फिर धीरे से वो मटेरियल लाइफ में भी वो उसके इंडिकेशंस दिखते हैं। बट जनरली इतने सटल चेंजेस को कोई ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन बट व्हेन यू गो डीप इनटू भक्ति,
थोड़ा सा कोशिश करते हो कृष्णा को अपनी लाइफ में देखने का ना, देन कृष्णा शोज यू, कृष्णा गिव्स यू लॉट ऑफ सिग्नल्स कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, और जो मैं तेरा कर्मा जो है ना उसको मैंने बहुत कम कर दिया है, बहुत काट दिया है, थोड़ा सा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि तू थोड़ी सी भक्ति कर रहा है, थोड़ी सी भक्ति करके तू मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो मैं वहां से कर्मा तेरा मटेरियल की जगह से मैं तेरे को स्पिरिचुअल साइड से ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे तेरी भक्ति और बढ़ेगी, जिससे तेरा फेथ और बढ़ेगा। और दूसरा, जो मटेरियल से भी थोड़ा बहुत जो रह गया वो थोड़ा सा मटेरियल से भी बहुत कम करके दे रहा हूँ। तो जब हमें ये पता चलेगा ना, बी वेरी काम, वेरी कंपोज कि वाह, कृष्णा की इतनी कृपा। आज ही कुछ ऑफिस में मीटिंग वगैरह थी, उसमें ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो आई वाज, मैं, मेरी वीडियो ऑन थी, मेरे फेस में अपनी शक्ल खुद ही देख पा रहा था। तो मेरे फेस पे नो, नो एंजाइटी, नो एंगर, नथिंग। उसके बाद मुझे पिंग किया जैसे मीटिंग खत्म हुई, किसी और टीम के मैनेजर ने मुझे पिंग किया, he said it is difficult to be in such meetings and but you really conducted it very well. I was like, ये क्या था? मैंने उस बंदे से कोई बात भी नहीं करी, मतलब ऑफिस में भी शायद एक आधी बार उसको हेलो हाय बोला होगा, एंड ही पिंग मी इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग। सो तो देन आई रियलाइज्ड कि ये इट्स नॉट पॉसिबल। अदरवाइज ये आज से 5 6 या 7 साल पहले अगर कुछ ऐसा होता तो मैं तो हिल जाता, मेरा दिमाग हिल जाता। बट आई एम राइट नाउ, आई एम सो काम कंपोज्ड और आई एम फीलिंग ग्रेटफुल रादर, ठीक है, अदर वे राउंड। मुझे गुस्सा आने की बजाय और फ्रस्ट्रेटेड फील करने की बजाय आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। उल्टा हो रहा है कि वाह कृष्णा, बस इतना सही दिया है। मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करता था, इससे ज्यादा थप्पड़ खाने डिजर्व करता था, कृष्णा तुमने इतना कम क्यों दिया मुझे? सो दिस इज व्हाट दिस पर्सनैलिटीज लाइक विदुर महाराज डू, राइट? तो जब ये धाम जाते हैं दे प्यूरिफाई धाम। और वैसे क्या बोलते हैं, धाम क्या करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करता है, ठीक है? हम जैसे जो पापी लोग जाते हैं वहां पर, धाम धाम में इतनी ज्यादा पावर होती है, क्यों क्यों होती है इतनी पावर वहां पे? धाम इज सरचार्ज्ड। क्या लिखा उन्होंने, द होली प्लेसेस ऑल ओवर द अर्थ आर मेंट फॉर प्यूरिफाइंग द पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हमारी घटिया कॉन्शियसनेस, ठीक है, हमारी लो कॉन्शियसनेस, हमारे गंदे विचार, ये सारे प्यूरिफाई हो जाते हैं। कैसे प्यूरिफाई हो जाते हैं धाम में जाके? बाय द एटमोस्फियर सरचार्ज विद द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड्स अनएलॉयड डिवोटीज। धाम में इतनी पावर कैसे है? क्योंकि वहां पर भगवान के भक्त हैं। आप वृंदावन जाओगे वहां पर इतने भक्त मिलेंगे आपको भगवान के, जैसे मैं बता रहा था कि आप ना चाहते हुए भी इतने ऑफेंस कर दोगे। आप थ्री व्हीलर में बैठे हुए हो, आप ऑटो में बैठे हुए हो, आपके सामने से 15 सन्यासी गुजर गए, अब आपने उनको दंडवत प्रणाम नहीं किया, चलो अपराध हो गया। अब ऑटो में से उतर उतर के आप दंडवत प्रणाम करने लग जाओगे तो बस फिर तो आप पहुंच नहीं पाओगे, कहीं कोई मंदिर देख ही नहीं पाओगे। बट आई एम टेलिंग कि इतने ज्यादा वहां पर सन्यासी हैं, इतनी ज्यादा पावर है वहां पर लोगों के पास कि उससे वो कॉन्शियसनेस ट्रेवल करती है उनके हृदय से आपके हृदय में। कभी आप देखो, कभी आप जब होली धाम, होली प्लेस पे जाओ, अपने वृंदावन जाओ, उसके बाद आपकी इतनी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होती है। आप जब कहीं भी जाओगे आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, आपको सब लोग अच्छे लगेंगे, आपको आपको दूसरों में अवगुण दिखने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भगवान के साथ इतनी प्रेजेंस है, आपके जो वहां पर इतने इतने अनअलॉयड डिवोटीज हैं उनके साथ इतना है, और आपकी कॉन्शियसनेस गोज टू नेक्स्ट लेवल। एंड देन यू रियलाइज कि धीरे धीरे मेलबर्न जैसे उग्र सिटी में आके वो धीरे 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 फिर से हम वैसे हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने बूस्ट करने के लिए धाम जाना चाहिए। और अब नेक्स्ट, अब बात विदुर महाराज ने कैसे घुमाई है कि तुम धाम नहीं जाओगे तो दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि अगर कोई धाम से तुम्हारे पास आ गया है दैट इज इक्वली गुड एज वेल, ठीक है ना? अपना घर ही वृंदावन बना लो, वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपना अपना घर वृंदावन बना लो, कैसे बनाओगे घर वृंदावन? अच्छा सा टेम्पल लाओ, वहां पर कृष्णा की स्थापना करो,
कृष्णा की पूजा करो, आरती करो, भोग लगाओ, दैट्स इट, इजी। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, स्टिल वंस जब भी मौका मिले वी शुड गो। बट जब वहां से कोई आए या कोई अनअलॉयड डिवोटी आए, उनमें क्या है, वो तो बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के डिवोटीज लाइक योर गुड सेल्फ आर वेरी वेरीली होली प्लेसेस पर्सोनिफाइड। आप ही धाम होती हमारे लिए, यू आर होली प्लेस पर्सोनिफाइड। ठीक है ना। अब जैसे और नहीं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला कि धाम में जाके हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। टू गो टू सम होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज डज नॉट मीन ओनली टू टेक बाथ इन गैंजेस और यमुना। ठीक है। हम क्या करते हैं जी, अच्छा जी हम हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा नहा के आएंगे, अपने पाप धो के आएंगे हम सब। ठीक है। गंगा नहा के पाप पाप धो लिए। बट वो क्या बोल रहे हैं, गंगा नहा के पाप तो चलो ठीक है धुल गए, बट एक्चुअल पाप जो अंदर 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 का पाप है, अंदर की जो मैल है, वो कैसे कैसे हटेगी? बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। They are actual service of the Lord, specifically by the process of hearing and chanting. हाँ जी माता जी बताइए। तो मुझे ऑलवेज, आपने ये पॉइंट रेज किया ना, ऑलवेज हैड दिस क्वेश्चन, लोग इतना जो हम्म कुंभ मेला भागते हैं या गंगा हम्म स्नान करते हैं, है ना, उससे हम्म सच में ऐसा कुछ होता भी है कि इज जस्ट हाँ। मन की तो कहानी? करेक्ट। तो मतलब ये दो चीजें हैं, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। हमेशा ये दो चीजें हैं, और बोथ मैटर, बोथ मैटर। हम हम क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल्स डोंट मैटर, बस अंदर होना चाहिए। नो, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और डेफिनेटली हैव या टू टेक एक्शन। हाँ। हाँ, एंड एट द सेम टाइम अगर एक्सटर्नल इंटरनल बोथ बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। तो देयर इज, वहां पर जाकर आपने उसका उसका 100% उसकी, और ये शास्त्रिक है, कुंभ कुंभ का मेला तो स्पेशली शास्त्रिक है। क्योंकि ये कुंभ में से उनका नेक्टर गिरा था, गरुड़ में गिरा था, वो बड़ी लंबी स्टोरी है, विल कवर इट सम अदर डे। तो वो एक्चुअल में वहां पर नेक्टर गिरा था, तो वहां का जल का छींटा लेना, वो इट इज प्योरीफाइंग। बट एट द सेम टाइम खाली वो करके आ जाना इज नॉट गुड। वहां पर जैसे इस्कॉन ने भी वहां पर वो लगाया था, दे वर सर्विंग प्रसादम। ठीक है। हम्म। तो जब भी धाम में जाओ, वहां पर जाके सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रजवासी से सुनो, वहां पर जाके वहां के भाव को ग्रहण करो। अब जब मैं गया मार्च में, तो मैं इधर उधर नहीं भागा कि, नहीं तो जनरली क्या होता है, हाँ वृंदावन गए, चलो ये वाला टेम्पल देख लो, 12 बजे बंद हो जाएगा, चलो ये वाला देख लो, 10 मिनट वहां चले जाओ, प्रभु फिर जी, वहां आई चले वाज जाओ। जस्ट टेलिंग दिस, आपसे बात करते सुनते सुनते ना, आई वाज टेलिंग मम्मा हम्म कि मैं जब लास्ट वृंदावन गई थी, तो हम्म फर्स्ट हम शायद 3-4 दिन के लिए गए थे। तो हम्म पहले दिन तो हम ना हर मंदिर भाग रहे थे, ऐसे ही जैसे हम्म आप बता रहे हो ना। और हम्म पता नहीं क्यों, और हर मंदिर में इतनी भीड़, और ऐसे लग रहा है लोग भगा रहे, निकलो निकलो निकलो, हम्म है ना, या हम्म फिर कोई बोलता दक्षिणा, तो ऐसे लग रहा था हम्म पता नहीं कहीं भाव ही नहीं आ रहे। जब हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे, क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा भी थे, हम्म तो जब हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे तो ऐसा मतलब वहां ना बहुत अच्छा, जैसे लोग अपने ना एकदम खो चुके हैं भक्ति में। कोई तो कीर्तन में मग्न हो चुका है, कोई वहां पे डांस भी तो ऐसे जैसे पता नहीं कोई दुनिया में, अलग दुनिया में पहुंच गया है। उनको देखा और देखा, अरे मंदिर तो बंद हो गया, और मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा कि अरे अब पहुंचे भी लेट और मंदिर बंद हो गया। प्रभु, विद इन 1 सेकेंड वो मंदिर के बीच से ना वो पुजारी ने दरवाजा खोला, और एकदम से राधा कृष्ण के दर्शन किए। मैं बोलती हूँ आज ओ, तक मेरे को वो टाइम नहीं भूला है, दैट मोमेंट व्हेन आई गॉट टू सी राधा कृष्ण, आई वाज लिटरली इन टीयर्स, कि कैसे वो मतलब भगवान इतनी कृपा करते, एकदम से दरवाजा खोल दिया, बताओ। देखो देखो, तो अभी पता ऐसे है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं भी अपनी सिस्टर, पहले मैं अकेला गया, एक हफ्ता मैंने अकेला, बहुत बहुत मजा आया मुझे अकेले को, आई वॉज अलोन। फिर नेक्स्ट वीक मैं अपनी सारी सिस्टर्स, अपने जीजू, अपने भांजे, इन सबके साथ गया। तो फिर मैंने उनको दिखाया, उनका भी सेम था, उनके साथ फिर मैंने उनको दिखाना था थोड़ा बहुत, चलो उनको दिखाया। और जब वो इस्कॉन आए, एंड दे आल्सो हैड दिस लाइक सिमिलर एक्सपीरियंस, जैसे जो शांति इस्कॉन में आकर मिली, जो यहाँ पर आके जो एक्सपीरियंस हुआ ना, वो बाहर और कहीं नहीं हुआ। एक तो वहां बिकॉज पर प्रभु, लाइक यू सेड, इट्स इंटरनल ऑल्सो, हाँ। है ना, इट यहाँ पे इज। सब भक्ति भाव में है, चैंटिंग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं अपनी। 24 दैट आवर हैज कीर्तन चल रहा है बीन। माता जी, 24 हाँ। घंटे कीर्तन चल रहा है वहां पर। Can you imagine?
24 घंटे कीर्तन चल रहा है, दैट्स नॉट इजी। तो पूरे रोस्टर बना हुआ है उसमें, तो दैट्स हाउ इट इज। तो और जब मैं था वहां पर तो गुरु महाराज आए हुए थे। हाँ, मैं बता रहा था कि वो जो आपने खोलने वाली बात बताई ना, तो ये राधा अष्टमी पे हुआ। राधा अष्टमी पे हम 4 बजे थे वहां पर, वो खोलने के लिए ना, 4:30 बजे दर्शन होते हैं जो मंगला आरती के। तो राधा रानी इज सो मर्सीफुल कि अभी दर्शन होने से पहले ही ना वो पुजारी 2 बार निकले और कर्टन से सिर्फ राधा रानी का ही वो दर्शन हुए 2 बार। मैंने हाँ, कहा वाह, राधा रानी सो ईगर on राधा अष्टमी टू गिव हर दर्शन टू अस। सो या, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता मतलब भगवान भी कितने ईगर होते हैं हमको दे हमें है। दर्शन देने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, So बिल्कुल। true. हम्म। हाँ, 2 बार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लाइफ में नहीं हुआ ऐसा कि कर्टन इतना ज्यादा खुल गया हो कि मतलब राधा रानी दिख गए, और या मैं उस पोजीशन पे खड़ा था समाव मुझे दिख गए। आई डोंट नो। तो यस, द तो वहां पर जाके द पॉइंट है कि वहां पर जाके धाम में जाके हमें हियरिंग एंड चैंटिंग करनी चाहिए। वी शुड लिसन। तो मेरे जब वहां पर मैं था तो गुरु महाराज आए हुए थे, तो मैंने गुरु महाराज, सुबह क्लास होती थी, मैं नहीं भागा इधर उधर। मैं 9 बजे उनकी क्लास हुई, 8 बजे भागवतम क्लास, उनकी भागवतम क्लास सुनी, फिर प्रसादम ग्रहण किया, फिर कहीं गए अगर एक दो बंदे में जाना था, फिर शाम को फिर से, शाम को 4 बजे फिर से क्लास, फिर शाम को आरती उनके साथ। तो पूरा अपने जो गुरु महाराज जो आए हुए थे वहां से, उनके साथ उनका वो सुना, उससे उससे प्योरिफिकेशन होती है। धाम में बैठकर सुनने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और फिर क्या है कि वही गुरु महाराज जब यहाँ आते हैं, वो यहाँ मेलबर्न को धाम बना देते हैं। अभी जो महाराज आ रहे हैं, जो हमारा कंबाइंड भक्ति दीक्षा हो रहा है संडे को, तो उसमें क्या है कि महाराज वो खुद से चल के पॉइंट कुक में भी, सो फॉर्चुनेट के इतने इतने बड़े सन्यासी यहाँ चल के पॉइंट कुक में आ रहे हैं हमारे पास। सन्यासी है वो, ही द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर जो आ रहे हैं अभी करने को। तो वो, हम उनको सुने, हमें उनके दर्शन मात्र, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, उनके दर्शन मात्र से ही हम इतने प्यूरिफाई हो जाएंगे। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है, कुछ कमेंट की वजह से मेरे को नाम नहीं पता था कौन है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, हेमा। हाँ जी माता जी, वो आईफोन लिखा आ रहा है। हाँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा मिस कर दिया। तो ये धाम मतलब ये टेम्पल, इज इट? धाम जैसे जैसे वृंदावन, वृंदावन पूरा यस। एक धाम है, ठीक है। हाँ हाँ। ये जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, ऐसा है। यस। हम्म, हाँ हाँ हाँ। नहीं, हरे कृष्ण। ठीक है। तो जब जब ये जब भी कोई फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं, जब भी कोई महाराज आते हैं, हमें अपनी बिजी, आई नो सबकी लाइफ बिजी है, बट उस लाइफ में से हम वो एक हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन रुकते हैं यहाँ पर, एक दिन तो हम निकाल सकते हैं। वो इतनी दूर से ट्रेवल करके, 70-80 साल की उम्र में वो ट्रेवल करके किसके लिए आ रहे हैं? उनको मजा आ रहा है वो करके, हमारे लिए आ रहे हैं। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पॉइंट बुक से पॉइंट बुक इंट्रोडक्शन करने जा सकें। तो सोचो कितने फॉलन है हम। वी शुड ऑल टेक दैट एडवांटेज, कम से कम एक बार, इफ नॉट 4-5 डेज। मतलब जो टेम्पल के पास हैं, जो अच्छे भक्त हैं, वो तो खैर लेते हैं, बट हमारे जैसे, वी शुड नॉट बी लेजी, शुड नॉट बी लेजी। और फिर लास्ट लास्ट पॉइंट है, एक मिनट रह गया, कि वी शुड बी practically applying that in our life। यहाँ पर लिखा था ना उन्होंने, we should take lessons and try to apply such instructions in practical life and thus gradually prepare ourselves। अब सुन तो लिया, अब सुना क्या, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, ठीक है, तो उसका क्या फायदा? तो वी शुड बी अप्लाइंग इन अवर लाइफ। और कैसे अप्लाई करेंगे? जो भी इंस्ट्रक्शन हम सुन रहे हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है ना, कि समझ तो आ रहा है, ठीक है, बट होता नहीं है, मुश्किल है, अप्लाई नहीं हो रहा, कैसे अप्लाई करें, ये क्वेश्चन आता है। सो मैं एक लेक्चर सुन रहा था सूरज सूरज बिहारी प्रभु का, उन्होंने बोला, डोंट आस्क हाउ, आस्क व्हाई। हम जनरली पूछते हैं हाउ, हाउ कैन आई अप्लाई इन माई लाइफ, हाउ कैन आई अप्लाई दिस इंस्ट्रक्शन इन माई लाइफ। डोंट आस्क हाउ, आस्क व्हाई। क्यों, क्यों करनी है मुझे?
ठीक है, प्रभु आप पतले हुए, मुझे भी पतले होना है। पतले क्यों होना है, कैसे पतले होना है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। पतले क्यों होना है, दैट इज द क्वेश्चन। पतले इसलिए होना है सो दैट यू कैन टर्न फ्यू हेड्स टुवर्ड्स यू, इज दिस द रीजन? और मुझे पतले इसलिए होना है ताकि मैं फिट रहूं और मैं भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकूं। और क्यों करना है, भगवान की सेवा क्यों करनी है? देन अगेन आस्क व्हाई। फिर दोबारा पूछो क्यों, क्यों क्यों क्यों। 5 बार अपने से क्यों पूछो। जब आपका क्यों बहुत स्ट्रांग होगा तो आप अपने आप कर लोगे, अपने आप वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ हाउ, स्टार्ट आस्किंग व्हाई। जस्ट मोर सम आई वांट टेल इन द एंड। ओके, we'll stop here। ग्रंथ की भागवतम की जाए, बात की जाए। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? हरे कृष्ण, प्रणाम आंटी। हरे कृष्णा। कैसे हो? हम भी गए थे रमन अच्छा, रेड्डी में, हमने लोटंगन लगाई थी, तो ऐसा लगता है कि हम कृष्णा के साथी है। हाँ अद्भुत अद्भुत। अभी हम 12 में गए थे, 2012 में, हाँ लेकिन वो अभी है, लेकिन हमारे को वीडियो वगैरह कुछ हमारे साथ अभी है नहीं। बहुत हाँ मिस करते हैं वो जगह। हाँ। फिर भगवान बोला ही तो जाना है, जगन्नाथपुरी तो जाके आई लास्ट ईयर। अच्छा, हाँ, नहीं बहुत मिस तो होता है बिल्कुल। अभी हम्म मैं लास्ट ईयर अपनी सिस्टर्स के साथ गया था, वो अभी तक बोलती हैं, वो फर्स्ट टाइम गई थी, उनको फर्स्ट हम्म। टाइम लेकर गया था मैं। तो हाँ, वो बोलते हैं कि मिस, दे स्टिल मिस, दे वांट टू गो अगेन, दोबारा जाना चाहते हैं सब लोग। बात है सही है। हम जगन्नाथपुरी गए थे ना, तो बहुत भीड़ भाड़ इधर। हम तो छोटे हैं देखने में इतने, तो हम वहां एक खंभा था, उसमें लकड़ी थी, उसमें चढ़ के देखा। और हाँ कैसा है कि एक तीनों एक साथ नहीं दिखते हैं जगन्नाथपुरी में। सुभद्रा जी और बलराम और कृष्णा एक साथ नहीं दिखते हैं, ऐसा सडनली नहीं हाँ दिखते हैं। एक दिखता है इधर से, एक दिखता है इधर से। तो हम हाँ इधर चढ़ते हैं, इधर चढ़ते हैं। और मेरी एक सिस्टर, हम सिस्टर और ब्रदर गए थे, तो हाँ, उनके साथ हम देखा। और एक सिस्टर है ना, उसके बोला कि हम फिर जाएंगे, 3 बार दर्शन करें, वाह, 3 बार। क्या बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।